Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter that is People as Resource, and this is the last video related to this chapter. So let's start this chapter. In this chapter we already had discussed that how people can act as a resource for their country, how human resource can convert it into the human capital formation, and we already discussed about the quality of population. Means if you want to increase the quality of your population, then you have to focus over two factors, that is health and the education. Today in this topic we are going to discuss about unemployment. What is unemployment? If I am going to ask you what is unemployment, तो आप कहेंगे मैम बेरोजगार मीन्स जो काम नहीं करते. So but what is the perfect definition of unemployment? Who is counted, who is not counted? Like for example, if I am going to ask you that your mother is counted under employed or unemployed, I think you must answer that कि my mother is unemployed because वो घर पर काम करती हैं. She is a domestic worker. अगर वो घर पे काम कर रही है in case your mother, तो वो आप उन्हें unemployed मानते हो, right? Okay. So you considered her unemployed because you think that she is not going outside and earn the money. That's why she must be counted under the unemployment. But I said no. She is not counted under the unemployment. Strange, but it's true. How? Because according to the definition of unemployment, definition says that people who are willing to work at the going wage rate but cannot find jobs. मीन्स वो लोग जो काम करना चाहते हैं, घर से बाहर निकलकर पैसा अर्न करना चाहते हैं, जो भी गोइंग वेज रेट चल रही है उस वक्त, जिस भी पैसे पे, जिस भी रेट पे उन्हें काम मिले, दे आर रेडी टू डू द वर्क बट दे आर अनेबल टू फाइंड द वर्क, then that person is called as unemployed. क्या आपकी मदर चाहती हैं घर से बाहर निकलकर काम करना? नहीं चाहती, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगी. क्लियर? और अगर इसी तरीके से हम देखें लाइक योर एज, आप अभी 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, तो क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं? बिकॉज आप चाहते तो हैं लेकिन अभी नहीं चाहते ना, इसलिए आप लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होंगे. मीन्स द पर्सन अप टू द एज ऑफ 19 और उसके अलावा वो पर्सन जो कि आपके काम करना नहीं चाहते और प्लस जो रिटायर्ड पर्सन है, इन तीनों ही लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट नहीं करते. अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट होते हैं आपके वो लोग जिनकी उम्र है 15 साल से 49 साल तक, 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, यानी कि 15 साल तक के बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको एडुकेट किए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके हेल्थ स्टेटस पे काम हो रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर में सर्व करेंगे. तो प्रेजेंटली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द जॉब, फर्स्टली. सेकंड, यू आर नॉट रेडी टू डू द जॉब. ठीक है, तो इसीलिए यू आर ऑल्सो नॉट काउंटेड अंडर अनएम्प्लॉयड. You are neither counted under unemployed, you are not counted under employed. Clear? So that's why we can say कि the person, कौन लोग आपके अनएम्प्लॉयमेंट काउंट होंगे? जिनकी उम्र 15 साल से यानी 15 ईयर से 59 ईयर्स के बीच में, पहली बार. और उसमें भी वो लोग काउंट नहीं होंगे जो कि आपके किसके अंदर आते हैं, जो कि आपके आते हैं जो काम करना नहीं चाहते. Means the person who didn't want to do the work, they are also not counted under the unemployment. Clear? So unemployment basically consider those people who want to do the work but they are unable to find the work at the given wage rate. That person is called as unemployed. Clear? So we can say कि अब अनएम्प्लॉयड, आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं, those who are willing to work but they are not finding the job at the given wage rate. Now is there any types of unemployment? Yeah, there are several types of unemployment. Like if we talk about rural unemployment, तो rural unemployment में हमें दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. फर्स्ट इज सीजनल एंड अनदर इज डिस्गाइज्ड. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजन वाइज होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप एम्प्लॉयड रहते हैं, कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. बेसिकली यू विल फाउंड इट इन द एग्रीकल्चर और द फार्मिंग फील्ड, कि आप सोइंग टाइम पर और हार्वेस्टिंग टाइम पर एम्प्लॉयड होते हैं और बीच का जो टाइम पीरियड होता है यू डिडंट हैव एनी वर्क, देन एट दैट टाइम यू आर अनएम्प्लॉयड. दैट इज कॉल्ड ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें फार्मिंग के अलावा और भी चीज़ों मिल सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो रेनी सीजन में नहीं होता,
तो जो लेबर कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी रहती है वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ए सीजनल, लेकिन बेसिकली रूरल में पाया जाता है और अर्बन में भी मिलता है। हम ये नहीं कह सकते अर्बन में नहीं मिलता, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन में भी मिलता है। लाइक अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, लेबर का। नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड होता है सीम टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि दिख रहा है कि इंसान काम कर रहा है बट एक्चुअली उसके काम करने या ना करने से कोई असर नहीं होता। आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि लाइक ये भी हमें फार्मिंग में मिलता है कि आप देखते होंगे छोटा सा फील्ड होता है, घर के 10-12 लोग हैं, सबके सब उसी फील्ड पे लगे हुए हैं। अगर उस फील्ड पे जरूरत ही 6 लोगों की है और लगे हुए 10 लोग हैं, तो जो 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं अगर वो ना भी काम करे तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है कि 10 लोग एम्प्लॉयड हैं। अब वो 10 पीपल्स आर एम्प्लॉयड, दे आर सीम टू बी एम्प्लॉयड, बट एक्चुअली उस फील्ड पे काम कितने लोगों का है? ओनली 6 पीपल। सो दैट्स व्हाई दीज 4 पीपल who are seen to be employed but actually उनके employed होने या ना होने से there is not a great impact. That's why those people are called as disguised unemployed. Are called as disguised unemployed. Clear? Next is urban sector में जो सबसे dangerous unemployment है, that is educated unemployment. People have a degree, post graduation degree, graduation degree, कंप्यूटर कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स कर रखे हैं, दुनिया भरे के बच्चों ने कोर्स कर रखा है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। मीन्स दे आर डिग्री ओरिएंटेड बट दे आर नॉट जॉब ओरिएंटेड। उनके पास डिग्री है बट उनके पास जॉब नहीं है, और ये बहुत डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है लिखता है इसलिए तो कि दैट ही कैन गेट अ बेटर जॉब, he can get a better job opportunity, he can get a better standard of living, but he is not getting the job after getting so much of degrees. That's why that is called as educated unemployment, कि people are educated but they are not getting the job. Clear? और इसी पॉइंट में उन्होंने ये भी बोला है कि अभी आप देखें कि जो रेट है ना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ता जा रहा है। मतलब 12th पास करने वाला बच्चे का एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ओरिएंटेड लोग होते जा रहे हैं ना, उनका जो आपका जॉब रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। इनकी कंपैरेटिवली 12th पास बच्चे के पास जॉब है बट बाकियों के पास जॉब नहीं है। इट इज दी वी कैन से कि इट इज दी ड्रॉबैक रिगार्डिंग दी इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, क्योंकि इकोनॉमी बहुत सफर करती है अगर, क्योंकि वो पहले 15 साल 20 साल 25 साल उस बच्चे के एजुकेशन को देती है, लेकिन वो बच्चा फिर भी कंट्री को सर्व नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैव एनी जॉब। ठीक है, या जॉब है तो ऐसी जॉब है कि बस मजबूरी में कर रहा है कि ही हैड टू सर्व हिज फैमिली, तो उसको बहुत कम रेट पर या जिस जॉब के वो लायक नहीं है वो उससे अच्छी जॉब कर सकता है, अच्छे जॉब पैकेज पे जा सकता है, लेकिन बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब एंड बिकॉज द नीड ऑफ देयर डेली लाइफ उसको वो जॉब करनी पड़ रही है। तो उस केस में इकोनॉमी बहुत लॉस होती है, इकोनॉमिकल लॉस बहुत होता है, और इसके कहीं ना कहीं पीछे हमारी इकोनॉमी ही रीजन होती है दैट वी आर नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड हिम अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, हिज एबिलिटी। हम उसकी एबिलिटी के बेसिस पर उसको जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन कि वाई ब्रेन ड्रेनिंग इज देयर इन आवर कंट्री। क्यों बच्चे पढ़ते यहाँ पर हैं और जॉब करने के लिए कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग जॉब ही अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए ब्रेन ड्रेनिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो टॉपिक है जिसमें आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं। आई डिस्कस सम पॉइंट हियर, बट इसमें आप अपने पॉइंट भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मैन पावर। वी ऑल नो जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर। बच्चे हैं, पढ़े हैं, लिख रहे हैं, 25 साल घर से दूर रहकर बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट बीन एबल टू गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ऑब्वियसली इट्स जस्ट द वेस्टेज ऑफ देयर मैन पावर। नेक्स्ट, पीपल टर्न इनटू लायबिलिटी, यानी कि जिन बच्चों को हम एसेट बनाना चाह रहे थे, जिन बच्चों के लिए हम उनकी हेल्थ उनके एजुकेशन पे खर्चा कर रहे थे, वो इकोनॉमिक लायबिलिटी, दे टर्न इनटू द लायबिलिटी। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ फीलिंग बिल्कुल निराश परेशान। आप देखते हैं कि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं दैट दे कमिटेड सुसाइड, हाथ काट लिया, फांसी का फंदा लगा लिया जस्ट बिकॉज दे आर नॉट बीन एबल टू गेटिंग द जॉब। वो फैमिली प्रेशर में बहुत ज्यादा है, टेंशन में है कि भाई हमने इतनी पढ़ाई करी लिखाई करी, हमें कुछ नहीं मिल रहा उससे। तो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग, डेस्पेयर की फीलिंग, सोशल क्राइम की तरफ वो लोग बढ़ने लगते हैं।
बहुत सारे क्राइम वो करने लगते हैं कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, कि डू अर्न द मनी, अब जॉब नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं, क्राइम की तरफ मूव ऑन भी करने लगते हैं। ये भी इसका ड्रॉबैक है। नॉट एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, इट्स वेरी क्लियर। सोशल वेस्टेज, जस्ट इट इज एक्ट एज अ सोशल वेस्ट। सोशल वेस्ट तो है ही है कि भाई ऑब्वियसली आप कंट्री को सर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सोसाइटी के लिए वेस्ट काम करेंगे। इकोनॉमिक के ऊपर ओवरलोड भर जाता है, क्योंकि इकोनॉमी को तो उन लोगों को ही पालना है जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को पालना है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमी ओवरलोडेड हो जाती है। वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन योर फैमिली आपके फादर वर्क कर रहे हैं, अब उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आपको इतना लायक बनाया, लेकिन स्टिल यू आर नॉट बीन एबल टू गेट द जॉब, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन में वो फादर है, आप अब क्या आ जाएंगे, अभी तक आप एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉय सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं हो रहे थे, बट नाउ यू आर कवर्ड अंडर द अनएम्प्लॉयड पर्सन, और अब आप अपने घर के लिए क्या बन जाएंगे, बर्डन बन जाएंगे। वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर क्या बनने लगेंगे, बर्डन बनने लगेंगे। हेल्थ ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास इनकम ही नहीं होगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन होगा, आप अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाएंगे, जब बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाएंगे तो हेल्थ स्टेटस भी डाउन होगा। प्लस इसके अलावा आपकी एजुकेट जो बच्चे एजुकेटेड हैं, अगर उनके पेरेंट्स की जॉब चली जाती है या फिर उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते तो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है, एजुकेशन सेक्टर से बच्चों को निकाल लिया जाता है कि भाई हमारे बस की नहीं है इन बच्चों को पढ़ाना। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर बन जाते हैं कि इकोनॉमी कैसे बेकार इकोनॉमी है ये, इस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है। आप ब्रेन ड्रेन वाला पॉइंट जो हमने लिखा था वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप सोसाइटी के एनिमी बन जाते हैं, हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। क्रिमिनल माइंड हो जाता है बच्चों का, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी पॉइंट विच यू कैन ऐड टू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि आप अपनी साइड से भी ऐड कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे संग आती हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जब एक पीपल अनएम्प्लॉयड होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम इस पॉइंट को, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर आप देखेंगे एक्चुअली में इट्स डिक्लाइन, साइन है गुड इंडिकेटर का, बट एक्चुअली इफ यू आर गोइंग टू से दे सी देन यू विल गोइंग टू सी कि एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे हैं वो उस काम के लायक ही नहीं है, वो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली का पेट भरना है, they have to serve their family, that's why they are going to work at any wage rate where they will get the work, because उन्हें पता है अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन इतनी लंबी है कि अगर वो किसी जॉब का अपॉर्चुनिटी के लिए मना करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए बैठे। क्लियर? सो इसीलिए वो रेडी है किसी भी काम को करने के लिए। मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर रेडी टू डू एनी वर्क व्हाट दे आर गेटिंग, इन स्पाइट ऑफ व्हाट देयर एजुकेशन है, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इफ दे आर गेटिंग द वर्क दे आर रेडी टू डू द वर्क, तो एक्चुअली में दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्या या तो उनकी जरूरत ही नहीं है उस काम में, लग रहा है काम कर रहे हैं, या उनके लायक ही काम नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है इसे, कि जब पीपल अपनी क्षमता से कम काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो भी हमें बहुत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ अब उन्होंने एक स्टोरी दी है आपको, जिस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि हाउ एक ऐसा विलेज जहां पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपनी कंट्री में, अपनी विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी। क्लियर? तो हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्टोरी ऑफ अ विलेज। इसमें क्या कहते हैं कि एक विलेज है जहां पे बहुत सारी फैमिली रहती हैं, हर एक फैमिली के पास इतना है कि वो अपनी फैमिली के मेंबर को सर्व कर सकता है। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग कि वो क्या करते हैं, वो जो फैमिली मेंबर है वो अपने बच्चों के लिए क्लोथ्स अपने आप बनाते हैं, अपने बच्चों को अपने आप पढ़ाते हैं। लेकिन उनमें से एक फैमिली ने सोचा कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को अपने आप नहीं पढ़ाऊंगी, एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजूंगी। उसने अपने बेटे का एडमिशन एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाया, वो एक एग्रो इंजीनियर बनकर बाहर निकलता है, और जब अपने विलेज पहुंचता है तो विलेज में नए नए तरीके की प्लोइंग के टेक्निक बताता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब वहाँ के लोग देखते हैं कि एग्रो इंजीनियर का इतना फायदा हुआ है कि दैट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीजेस एट अ ट्रेमेंडियस रेट, सो एग्रो इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ जाती है और वहां पर जॉब प्लेसमेंट होने लगती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो फैमिलीज हैं और फिर जो प्रॉफिट उससे होता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है उसके वो आपस में शेयर भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों के लिए अब सोचने लगती हैं कि हाँ, उनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। भाई देखो, एक फैमिली के बच्चे ने इतना कुछ करा है, तो अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा तो
मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा, मेरी इनकम भी इंक्रीज होगी। अब तक वो घर में पढ़ा रहे थे सब, तो उनको लगता है कि हम भी, तो इसके लिए वो पंचायत में जाते हैं, पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल में विलेज स्कूल होना चाहिए, वो ओपन कराया जाए। पंचायत को इंश्योर करते हैं कि अगर आप स्कूल खुलवाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू दी विलेज स्कूल। तो उसके लिए स्कूल खुलता है, स्कूल खुलता है तो टीचर को जॉब मिलती है, ठीक है, टीचर आता है पढ़ाने के लिए, बच्चों का एजुकेशन लेवल सर्व होता है, 4th क्लास को काम मिलेगा, कितने लेवल पर आप देखिए स्कूल खुलेगा तो कितने लोगों को काम मिलेगा। और इसके अलावा एक फैमिली है, उसने अपनी बेटी को टेलरिंग का कोर्स सिखाया, तो वो लड़की जो है बहुत टेलरिंग का कोर्स सीखकर बहुत डिजाइनर क्लोथ्स बनाने लगती है। तो अब जो फार्मर्स या जो लोग अपने घर पे क्लोथ्स बना लेते थे जैसे बस लिया दिया टाइप, तो अब वो डिजाइनर क्लोथ्स पहनने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाहर जाते थे क्लोथ्स खरीदने के लिए, उनका टाइम बच जाता है, और जो टाइम बचता है क्लोथ्स बनाने में या क्लोथ्स को बाहर से खरीद कर लाने में, उस टाइम को वो अपनी फील्ड पर लगाने लगते हैं। और उस फील्ड पर जब वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो उनका प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और उसी चीज़ को वो विलेज के मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सेल ज़्यादा करेंगे, सेल ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो विलेज मार्केट में ये चीज़ें सेल होने लगती हैं। तो धीरे धीरे एक ऐसा विलेज जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी शुरुआत में, धीरे धीरे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज होने लगती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, टीचर को जॉब मिल गई, टेलर की जॉब मिल गई, एग्रो इंजीनियर आ गए, कितने सारे लोगों को जॉब मिली एक सिंगल एक स्टेप से, कि एक फैमिली ने अपने बच्चे को कहाँ भेजा, इंजीनियरिंग स्कूल भेजा, उससे और लोग प्रमोट हुए, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करा, टीचर्स को जॉब मिली, बच्चों को एक तरह से वोकेशनल कोर्स सिखाया, टेलरिंग का काम सिखाया, तो उससे उनको भी जॉब मिली, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छी सोसाइटी, एक वेल सोसाइटी वी कैन डेवलप, कि हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम लोग अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? सो आई थिंक यू ऑल गेट माई पॉइंट्स। आपको समझ में आ गया होगा कि नाउ व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर, in this topic, and I hope you like the video. Thank you for watching the video.